नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जावलगी के विधायक एवं केकेआरडीबी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने बीदर सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान से मुलाकात की। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में रहे शाहीन गर्ल्स कैंपस में चुनाव जागृति कार्यक्रम। मैं राज्यपाल के नोटिस से नहीं डरता, सिद्धरामैया ने कहा। मूडा घोटाले पर सीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा जेडीएस का मैसूर चलो मार्च शुरू। वायनाड में मिले शव जलाए जाएंगे या मिट्टी में होंगे दफन, जाने राज्य सरकार ने क्या निर्देश दिए। महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को कहा खटमल किसके लिए कह दिया अब्दाली। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जावलगी के विधायक एवं केकेआरडीबी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने आज नूर कॉलेज में बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान से मुलाकात की। वह आज हैदराबाद से बीदर पहुंचे। इस दौरान अजय सिंह नूर कॉलेज परिसर में मोहम्मद फिरोज खान से मुलाकात की, जहां उनका स्वागत और सम्मान किया गया। मुलाकात के दौरान मोहम्मद फिरोज खान ने बीदर जिला वक्फ कार्यालय के स्थान को बदलने के लिए आग्रह करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। इस पर अजय सिंह ने आश्वासन दिया कि वह जल्द ही कार्यवाही करेंगे। इस अवसर पर केपी न्यूज के सह संपादक समीर खान, कांग्रेस नेता परवेज एहसान कमाल सहित अन्य उपस्थित रहे। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में रहे शाहीन गर्ल्स कैंपस में आज एक चुनाव जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों में चुनाव के संबंध में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न प्रकार के चुनाव प्रक्रिया कर दिखाया गया कि कैसे चुनाव किए जाते हैं। इस मौके पर विद्यार्थियों ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। The main motive of this press conference is to convey to the society how the Shaheen management and the students are working hard to improve this Shaheen. The main motive of this election is to enhance the leadership of the students, like to make the student familiar with the election procedure, the value of one vote for the candidates to make them a leader, upholding the democratic value and upholding the students' right. We use ballot paper to showcase the value of ballot paper. We use Aadhaar card for the student as the voter ID. This election is held for school captain, house captain, cultural captain and sports captain. So basically we know school captain is the shadow of the administration. When any student faces a problem, it is not very convenient to go to the principal and speak. Instead, they can go to the school captain and consult their problems in front of there freely and like without any hesitation. And physical fitness is very important. So as we are selecting sports captain for the physical, to enhance the physical fitness and co-curricular activities. And many students, like we know, they caught up with their academic progress and studies. So to make sure that they are not forget the culture, so we are having cultural captain. A part of being friendly with students and helping other students in their need, the students have a spirit of healthy competing against among them. Hence we are dividing students into 4 groups. When will the students compete against each other, and the students will compete each other. Thank you. Okay, what are the challenges faced during this election? It was a very tough challenge to make. It was a very tough challenge to make ballot papers, voter IDs, as there is a lot of strength in the whole institution. We also prepared symbols by our own and provided to the candidates. The Chief Election Commissioner went to the classes and selected the capable students for the posts, like polling officers, presiding officers, returning officers. We had to maintain the decorum of the school while the whole procedure was going on. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा
और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि वह नोटिसों से नहीं डरते और राज्यपाल की कार्यवाही तथा विपक्ष के हमलों का कानूनी और राजनीतिक रूप से सामना करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या वह मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा में कथित घोटाले पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत के कारण बताओ नोटिस से हिल गए हैं, जहां उनकी पत्नी प्रवृत्ति को भूमिहीन के रूप में 50-50 योजना के तहत साइटें दी गई हैं। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्षी नेता अशोक को डरना चाहिए। मैं किसी नोटिस से नहीं डरता, मैंने कोई गलती नहीं की है, न ही मैं इस मामले में कोई प्रत्यक्ष पक्ष हूं। सिद्धरामैया ने कहा कि वे कैबिनेट मीटिंग से दूर रहे और जब इस बात पर चर्चा हुई कि शोकेस नोटिस अवैध है तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को इसकी अध्यक्षता करने के लिए नामित किया। उनके कैबिनेट सहयोगियों ने राज्यपाल से नोटिस वापस लेने की अपील की। कर्नाटक में विपक्षी भाजपा और उसकी सहयोगी जेडीएस ने शनिवार को बेंगलुरु से 7 दिवसीय मैसूर चलो मार्च शुरू किया। इस मार्च में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग की गई। आरोप है कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा में अवैध साइट आवंटन घोटाले में सिद्धरामैया शामिल हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र और जेडीएस युवा विंग के अध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी ने ढोल की थाप के बीच बिगुल बजाकर मार्च की शुरुआत की। 7 दिवसीय मार्च का समापन 10 अगस्त को मैसूर में एक विशाल सार्वजनिक बैठक के रूप में होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त है और उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने भाजपा और जेडीएस दोनों के कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सिद्धरामैया के लिए बेहतर है कि वह स्वयं इस्तीफा दे दे और सम्मानपूर्वक पद छोड़ दें। इस अवसर पर कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि कांग्रेस को मुख्यमंत्री को नोटिस जारी करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत से सवाल करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा नोटिस दिए जाने के बाद सिद्धरामैया कांपने लगे हैं। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि जब राज्यपाल मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देंगे तो क्या होगा। वायनाड और शिरूर भूस्खलन के मद्देनजर वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्री ईश्वर बी खंडे ने जिला प्रशासन और अतिरिक्त मुख्य सचिवों को निर्देश जारी किए कि वे सुनिश्चित करें कि 2015 के बाद हुए सभी अतिक्रमण तुरंत हटा दिए जाएं और 1 महीने के भीतर कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाए। खंडे ने राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों जिनमें चिकमंगलूर, शिवमोगा, मैसूर, चामराजनगर, बेलगावी, दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, कोडगु और हासन शामिल हैं कि कॉफी बागानों और वन क्षेत्रों में अवैध रूप से बनाए जा रहे होम स्टे और रिसोर्ट्स की बढ़ती संख्या की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि सप्ताहांत में हजारों लोग ट्रैकिंग और अन्य गतिविधियों के लिए इन स्थानों पर जाते हैं, जिससे आपदाएं और बढ़ जाती हैं। खंडे ने विशेषज्ञों की राय को स्वीकार किया कि कॉफी बागानों, होम स्टे, रिसोर्ट्स और सड़कों के लिए पेड़ों की कटाई और वनस्पतियों के विनाश के कारण ऐसी त्रासदियां बार बार हो रही हैं। उन्होंने कहा सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और कार्यवाही करेगी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन से हुई त्रासदी के बाद प्रशासन के सामने नई चुनौतियां आ रही हैं। यहां रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ने के साथ बड़ी संख्या में शव और मानव शरीर के अंग मिल रहे हैं। इनमें से कई शव ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं हो सकी या जिनके सगे संबंधी भी इस हादसे में मारे गए। राज्य सरकार ने शवों को दफनाने के लिए डीएनए और दांतों के नमूने एकत्र करने सहित अन्य दिशा निर्देश जारी किए हैं। भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में मिले शवों में से अनेक की पहचान नहीं हो पाई है। आपदा प्रबंधन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक शव या शरीर के अंग को एक पहचान संख्या दी जाएगी और इसका सभी नमूनों, तस्वीरों, वीडियो और शवों से संबंधित भौतिक वस्तुओं के रिकॉर्ड्स में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि पुलिस शवों या मानव अंगों की पहचान के लिए हर संभव प्रयास करेगी और यदि इसके बाद भी शवों की पहचान नहीं हो पाई तो वे जांच के 72 घंटे बाद शव को आगे की कार्यवाही के लिए जिला प्रशासन को सौंप देंगे। 2 अगस्त को जारी किए गए दिशा निर्देशों में कहा गया कि जिला प्रशासन में पाड़ी पंचायत और उस पंचायत या नगरपालिका को सूचित करेगा जिसमें शमशान घाट स्थित है। ऐसे मामलों में जहां संबंधित चिकित्सक ने लिखित रूप से सलाह दी कि सडन या अन्य कारणों से शव को तत्काल दफन किया जाए, वहां शव को बिना किसी प्रतीक्षा के तत्काल जिला प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को खटमल कह डाला। उससे पहले ठाकरे ने कहा कि जैसे मुंबई में मैंने कहा था कि या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा, मैं फिर कहता हूं या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा। यहां मेरे पैर के नीचे कलिंगड़ रखा गया है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि कुछ लोगों को लगा कि मैंने फडणवीस कहा था कि या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा, लेकिन मैं खटमल को चुनौती नहीं देता हूं। फडणवीस ने कहा कि मेरे आड़े मत आओ। अरे तेरी हैसियत ही क्या है, तेरी हैसियत ही नहीं है। खटमल को अंगूठे से कुचला जाता है। अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज अमित शाह पुणे में आया था, वो भी शाह था, ये भी शाह है। नवाज शरीफ का केक खाने वाले हमें हिंदुत्व सिखाएंगे। मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सत्ता बनाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। आपका हिंदुत्व कैसा है? अगर हिंदू मुस्लिम लड़का लड़की शादी करते हैं तो आप लव जिहाद कहते हो, लेकिन आप मुसलमानों के लिए जो काम करते हो तो वो क्या है? अगर हम औरंगजेब फैन क्लब है तो आप जो कर रहे हो वो सत्ता जिहाद है। ये लड़ाई उद्धव ठाकरे और शिवसेना की नहीं है बल्कि महाराष्ट्र की है। लोकमान्य तिलक की तरह आज मोदी शाह के खिलाफ महाराष्ट्र संतोष का जनक बनेगा। आज से अमित शाह को मैं अहमद शाह अब्दाली कहूंगा। आपको ये अब्दाली चाहिए या मैं? औरंगजेब की तरह इनकी राजनीतिक कब्र महाराष्ट्र में खोदो। उद्धव ठाकरे ने इससे पहले भी देवेंद्र फडणवीस को लेकर काफी कुछ कहा था। आज भी उनकी नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। अयोध्या गैंगरेप मामले में जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं पर प्रशासन का शिकंजा कस चुका है, वहीं अब बसपा प्रमुख मायावती ने योगी सरकार की कार्यवाही का समर्थन किया है। सोशल मीडिया एक्स पर मायावती ने लिखा, यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही उचित है, लेकिन सपा द्वारा यह कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए? जबकि सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यूपी सरकार को सलाह दी है कि अपराध पर चिंता जताई है। उन्होंने आगे लिखा, यूपी में अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था में भी खासकर महिला सुरक्षा व उत्पीड़न आदि को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अयोध्या व लखनऊ आदि की घटनाएं अति दुखद व चिंतित करने वाली। सरकार इनके निवारण के लिए जाति, बिरादरी एवं राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाए तो बेहतर है। उत्तर प्रदेश झांसी का ये कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन खनिज विभाग, झांसी पुलिस अपनी नाकामी को लेकर समाचार पत्रों और सोशल मीडिया की सक्रियों में बनी रहती है। कभी ग्राम नवादा में बड़े पैमाने पर अवैध खनन पर लिप्त बनी रहती है, तो अगर सिस्टम का खेल नहीं होता तो इतने बड़े पैमाने मध्य प्रदेश के ग्राम नीला नरैनी के 8-10 ट्रैक्टर रात को 1 बजे से सुबह 5 बजे तक बराबर 3 माह अवैध खनन होना संभव नहीं है। वही सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूरा सिस्टम लगाकर अपने बड़े अधिकारी को मैनेजर कर अवैध खनन बड़े पैमाने पे मौरानीपुर क्षेत्र छोटे से बड़े अधिकारी से सप्रार नदी में अवैध खनन चल रहा है और जिले में बैठे अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। योगी सरकार निरंतर अवैध कार्यों में लगाम लगानी चाहिए है और दूसरी तरफ मौरानीपुर में बैठे अधिकारी सूबे के मुखिया के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। झांसी से मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट।
लखनऊ में अल्पसंख्यक महापंचायत का आयोजन। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओपी राजभर मौजूद। 51 किलो की माला पहनाकर राजभर का हुआ स्वागत। महापंचायत में बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मगुरु मौजूद। अल्पसंख्यकों के अहम मुद्दों पर हो रही है महापंचायत। मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, मदरसों, वक्फ पर चर्चा। अधिकारों और राजनीति में भागीदारी पर चर्चा। अली हैदर की रिपोर्ट। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कमला हैरिस के नाम की आधिकारिक घोषणा होने के बाद रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पहला रिएक्शन सामने आया है। ट्रंप की प्रचार अभियान टीम ने शुक्रवार को ऐसा बयान दिया जिससे कि कमला हैरिस के खेमे में बवाल मच गया है। ट्रंप की प्रचार टीम का दावा है कि कमला हैरिस सबसे कम लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी है, क्योंकि उनके नाम पर एक भी वोट नहीं पड़ा। ट्रंप की प्रचार अभियान टीम ने कमला के चयन प्रक्रिया को साम्यवादी चीन की याद दिलाने वाला करार दिया। इससे कमला हैरिस भी बौखला गई हैं। भारतीय अफ्रीकी मूल की 59 वर्षीय कमला ने शुक्रवार को पर्याप्त डेलीगेट प्रतिनिधियों के वोट हासिल कर लिए, जिसके बाद उन्हें आधिकारिक तौर पर सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित किया गया। बता दें कि अमेरिका में 5 नवंबर को प्रस्तावित राष्ट्रपति चुनाव में देश की मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मुकाबला पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप 78 वर्षीय से होगा। ट्रंप की प्रचार अभियान टीम ने कहा, डेमोक्रेटिक पार्टी के लोकतंत्र के लिए वास्तविक खतरा है। अमेरिकी इतिहास की सबसे कम लोकप्रिय उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को उनके नाम पर एक भी वोट पड़े बिना आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। चीन के उत्तर पश्चिमी शांक्सी प्रांत में एक राजमार्ग पुल के आंशिक रूप से ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है और करीब 2 दर्जन लोग अभी भी लापता हैं। सरकारी प्रसारित सीसीटीवी ने शुक्रवार शाम को यह जानकारी देते हुए बताया कि 19 जुलाई को हुई इस घटना में 2 दर्जन वाहन तेज बहाव वाली नदी में गिर गए। सीसीटीवी की खबर के अनुसार एक व्यक्ति को बचा लिया गया था। शांक्सी प्रांत में जिस क्षेत्र में डैनिंग राजमार्ग पर पुल ध्वस्त हुआ, वहां पिछले दिनों भारी बारिश हुई। सीसीटीवी की खबरें के मुताबिक पुल ध्वस्त होने पर कम से कम 25 कार नदी में गिर गई। बचाव दलों ने पीड़ितों की तलाश में कई किलोमीटर नीचे तक खोज की। घटना के तुरंत बाद सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ द्वारा जारी की गई एक तस्वीर में पुल का एक हिस्सा टूटा हुआ और लगभग 90 डिग्री के कोण पर नीचे बहते पूरे पानी में मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। सीसीटीवी की खबर में कहा गया कि नदी एक पहाड़ी घाटी से होकर गुजरती है और मई में ग्वांगडोंग प्रांत में इसी तरह की एक घटना में 36 लोगों की मौत हो गई। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। जावलगी के विधायक एवं केकेआरडीबी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने बीदर सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान से मुलाकात की। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में रहे शाहीन गर्ल्स कैंपस में चुनाव जागृति कार्यक्रम। मैं राज्यपाल के नोटिस से नहीं डरता, सिद्धरामैया ने कहा। मूडा घोटाले पर सीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा जेडीएस का मैसूर चलो मार्च शुरू। वायनाड में मिले शव जलाए जाएंगे या मिट्टी में होंगे दफन, जाने राज्य सरकार ने क्या निर्देश दिए। महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को कहा, खटमल किसके लिए कह दिया अब्दाली। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।